কবচ থাকলে কি এড়ানো যেত দুর্ঘটনা? কিভাবে কাজ করে এই সিস্টেম? নমস্কার, ইন্ডিয়া নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ঋতুশ্রী মজুমদার। ফের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা শিয়ালদহমুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে ধাক্কা দিল মালগাড়ি। দুর্ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। বারবার দুর্ঘটনা কেন? পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন উঠছে রেলের সুরক্ষার ব্যবহৃত কবচ সিস্টেম নিয়ে। দিল্লি গুয়াহাটি রেলপথে কবচ সিস্টেম বসানোর কথা থাকলেও তা ছিল না বলেই খবর। আর এরপরেই যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু জানেন কবচ সিস্টেম কি এবং এটি কিভাবে রেল দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে? কবচ সিস্টেম হলো রেলওয়ের আর্মার সিস্টেমটি রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন RDSO এই সিস্টেম তৈরি করেছে। একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে কবচ সিস্টেম। এই কবচ সিস্টেম হলো অ্যান্টি প্রোটেকশন সিস্টেম, যা মূলত দুর্ঘটনা রুখতে এই সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই সিস্টেম ব্যবহারে এক ধাক্কায় প্রাণহানি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। দুটি ট্রেন মুখোমুখি আসলেই এই কবচ সিস্টেম তা নিয়ে নিজে থেকে কাজ শুরু করে দেবে এবং ব্রেকিং সিস্টেম অটোমেটিকভাবে কাজ করে দুটি ট্রেনকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই সিস্টেম যে কোনো বড় দুর্ঘটনা রুখে দিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, পরীক্ষাতেও সফল। কবচ সিস্টেম নিয়ে কি জানান রেলমন্ত্রী? গোটা দেশে এই কবচ সিস্টেম বসানোর যোজনা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই কাজ এখনো কিন্তু অনেকটাই বাকি। শনিবারই এক সাংবাদিক সম্মেলনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, কবচ লাগানোর আগে ট্র্যাক এবং স্টেশনের ডেটা সেন্টার তৈরির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং দেওয়াও হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত 6000 কিলোমিটার পর্যন্ত কবচ সিস্টেম লাগানো হয়েছে। আরও 10,000 কিলোমিটারে কাজ চলছে বলে জানাচ্ছেন রেলমন্ত্রী। এই কবচ সিস্টেম কিভাবে কাজ করবে? অনেক ক্ষেত্রে চালকের ভুলে কিংবা কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ট্রেন রেড সিগন্যাল ক্রস করে এগিয়ে যায়, আর সেই সময়ের পরিস্থিতিকে বিপদ সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর সেই সময় কবচ সিস্টেম 1 অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক কাজ করতে শুরু করে দেয়। এতে ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। এতে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। একইভাবে নির্দিষ্ট গতির বেশি কোনো ট্রেন যদি চলে, সেই ক্ষেত্রে কবচ 89 অ্যাক্টিভ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি খারাপ মরশুমেও কবচ কিভাবে কাজ করে তার প্রমাণ পেয়েছেন রেল আধিকারিকরা। ইন্ডিয়া নিউজ বাংলার সাথে যুক্ত থাকুন আর দেখতে থাকুন বিশেষ বিশেষ খবর। वहाँ पे सिलीगुड़ी पहुंचूंगा, लगभग 5:30 बजे मैं सिलीगुड़ी पहुंचूंगा और पहुंच के मेरा जो मनीषा है, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले जाऊंगा। जो लोग इंज्यूर्ड है उनसे मिलूंगा और उनका हालचाल पूछूंगा। और हमारी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक से लेकर सब वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात है। अभी हमारे सांसद मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं एट प्रेजेंट। उन लोगों से मिलके उसके बाद वो माननीय रेल मंत्री जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। माननीय रेल मंत्री भी कुछ ही समय बाद वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े हुए हैं दुख की स्थिति में। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी जा रही है वहाँ, उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, लेकिन मेरा उनसे प्रार्थना है कि इस दुख की स्थिति में वो पॉलिटिक्स ना करें। लोगों के पास जाए लोगों के साथ खड़े हो, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स, बीजेपी को दोष देना, इसको दोष देना, ये ना करें। बालासोर में 1 साल पहले ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, इतनी लोगों की जान गई, फिर भी उसके बाद ऐसा एक इंसिडेंट। ये जो बोला जा रहा था कि कवच सिस्टम पूरे नेटवर्क में लगाया जाएगा, पूरे इंडियन रेल में कवच सिस्टम आएगा, तो कवच सिस्टम चल रहा है लगाना, लेकिन ये तो देखिए हम गले में जो कवच डालते हैं वो वाला तो कवच नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के लिए टाइम लगता है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी रेल है, तो इसमें कवच लग रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। अभी ह्यूमन एरर हो गया है। अभी जो प्राथमिक जो इंक्वायरी है उसमें जो डेटा आया है उससे दर्शाता है कि जो मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उनके द्वारा कुछ मिस्टेक हुई है। तो कवच लगने के बाद ये घटना घटेगी, लेकिन कवच लगने में भी टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन की काम नहीं है। और इससे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता था, कवच लगने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट घटा है। जितने जल्दी हम कवच लगाएंगे उसके साथ साथ LH भी कन्वर्शन हो रहा है रेल का। ICEF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री वाला जो कोच है उसको हटा के जितने LH भी आएंगे उतनी मौतें कम होगी। अगर एक्सीडेंट बाई चांस हो भी गया फिर भी तो एक इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये टाइम के साथ साथ ये काम हम करेंगे। अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट है एकदम ग्राउंड रिपोर्ट है, 8 लोगों की मौत हुई है,
टोटल 44 लोग इसमें एडमिटेड है हॉस्पिटल में। 4 की स्थिति संगीन है, मतलब क्रिटिकल है जिसे बोलते हैं। 4 की स्थिति क्रिटिकल है, बाकी 40 लोग खतरे से बाहर है, ऐसा मेरे पास इनपुट आया है। टोटल 52। पूरा व्यवस्था चल रहा है वहाँ पे। सहायता के लिए हमारे सांसद से लेकर विधायक से लेकर सब खड़े हुए हैं। सरकारी टीम पहुँच गई है, रेल की टीम पहुँच गई है और पूरे मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। रेस्क्यू का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है। और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूं गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं। और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा। और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। सारे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जो अभी तक आंकड़े ध्यान में आए हैं, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लास्ट इंस्पेक्शन अभी भी कोचेस के अंदर में देखा जा रहा है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है। और 25 से 30 लोग, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े इस समय आपको किसी के पास नहीं मिलेंगे, वो आंकड़े 1-2 बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 2 घंटे में सरकारी आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। रेलवे मंत्री जी का भी यहाँ आने का खबर मिल रहा है। रेलवे मंत्री सवेरे से नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं और रेलवे मंत्री अगले घंटे भर में जो है स्पोर्ट्स पे पहुंच चुके होंगे। और यहाँ पे सारा पुलिस प्रशासन भी सवेरे से लगा हुआ है। सर, रेलवे आधिकारिक के साथ कौन कौन सी टीम है? जैसे एनडीआरएफ भी है, कौन कौन है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन डीएम स्वयं यहाँ पे मौजूद है और रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि जनरल मैनेजर वो गुवाहाटी रहते हैं, तो मुझे लगता है वो सवेरे निकले थे 8:30 बजे, तो अगले घंटे भर में वो भी पहुंच चुके हैं। आर्मी को बुलाया जा रहा है इसके लिए? देखिए, अब जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जो एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से रेलवे कार्रवाई करेगा। और पहला अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बोगियां ऊपर चढ़ी हुई उनको उतार करके ट्रैक को क्लियर करें। राज्य सरकार से किस तरह की मदद मिल रही है सर? देखिए, राज्य सरकार जहां तक पुलिस प्रशासन है वो अपना काम कर रही है और एनडीआरएफ की टीम के साथ जो है एसडीआरएफ भी लगी है।